लियो, जियो, मियो के बारे में, isn't it? और अच्छा हाँ, डिफिशियंसी अभी हमने नहीं कवर किया था, हालांकि बहुत इजी है, उसके बारे में हम लोग आज ही कवर कर लेंगे। सो डिफिशियंसी ऑफ जियो, मियो, लियो, है ना। हियो एक होता है, वो भी देखेंगे, लेकिन अभी जो सिलेबस में दिया हुआ है ना, उस पर फोकस करेंगे, है ना। इलिप्टिकल ऑर्बिट वाला जो है, उसमें हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में हियो करके एक है, वो भी देख लेंगे। मान लीजिए हो सकता है इसके अलावा भी कुछ पूछ दे, समझे। तो सो व्हाट आर द डिफिशियंसी ऑफ दिस जियो, मियो, लियो, क्या क्या एडवांटेजेस है, डिफिशियंसी है, ये सारे सैटेलाइट सिस्टम के अंदर ये आ जाएंगे, है ना। फिर एप्लीकेशंस भी देखेंगे हम लोग कि क्या क्या इसके एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। सैटेलाइट्स हैंडओवर के बारे में देखेंगे, इजंट इट। इवन वी हैव गॉन थ्रू हैंडओवर, है ना। हैंडओवर जैसे बेसिक लेवल पे हमने कर रखा है। सपोज यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, so right now you are connected with one tower, so next time you may be connected with another tower, so obviously that entire signal has to be handed over to the next tower without losing the connection. You are still connected, you are on the fly, you are going somewhere, and you are not going to lose the connection. So that is the beauty of your handover. So we'll see soft handover, hard handover, some types of handovers are there. So next is your routing. So we are going to see how the satellites, how the signals are being routed, है ना? So most of the time we are going to go for this broadcasting, because the satellite concept is nothing but some sort of your broadcasting, acting as your mirror, है ना? Quite similar to your mirror. We are sending the data, and satellite is throwing the data back to the some different portion of the Earth, isn't it? So that is all about your. So you will see how the things are being handed over, how the signals are being routed. Quite similar to routing in computer networks, isn't it? So next we are going to see the architecture. So what is the architecture of this satellite system? What are the constituent elements of this satellite system? Okay. So how the altitude and the performance and the platform are going to, this performance is going to be deteriorated, and based on this altitude. So we are going to see all this aspect in this fifth part. So coming back to your Geo, Mio, Leo. So to some extent we have seen by, I mean, we have seen the distance that is going to be covered by this Geo, Mio, Leo. But what are the deficiency of this Geo, Leo, Mio? Can anyone? Sir, because low Earth orbit satellites are very near to Earth, so they need more base stations. Exactly. Very good. Very nice. And sir, geo is means it is unable to cover the polar regions of the Earth. Right, right, right. Very good. And because of that elliptical part of the that is already there, that we already know the geographic, I mean this geographic, physical geographic of this your Earth. So in that case, this polar part, so it is quite difficult to cover that polar part. It is going to cover, but the signals are not very good. So all of you are getting this. Brinda said something related to Yes, your, sir. right. So this Geo, Mio, Leo, है ना? This is lower orbit. This is somewhere middle part of this one, and this is the topmost. Clear? So here we are going to use this in Geo. We are going to use less number of satellite, because it is going to cover almost 3 satellites are going to cover the entire Earth, isn't it? But in some of the cases it is 7, and so on and so forth. So the more number of satellites, the coverage will be more. But in Geo, because since it is the highest part of the Earth, and so if you're going to take, suppose from Earth, so it is at very higher altitude. So in that case, it is going to cover, I mean, larger region. And here, middle part of the Earth, we are going to talk about the middle, somewhere in between this Geo and Leo. So in that case, I mean, the number of satellites are going to increase as compared to Geo, but as compared to Leo, the number of satellite will be less, clear, in order to cover the entire Earth surface. So these are the deficiency. We are going to talk about the deficiency of these 3 aspects. Clear?
or so this suppose we talked about the this importance of geo, है ना? Because very less number of satellites are required. But what are the drawback of this geo? So it need higher power. So in order to send the data, है ना, very high power is required because the altitude will be very high from Earth, है ना, the distance is very high. If you are going to talk about, suppose let me open that. Somewhere it is there. I think whiteboard is there, inbuilt by whiteboard is there somewhere, na? Otherwise I'm going to use this OneNote. Let me open that OneNote. So let me add one more note over here. Fine. So let me draw something. Now suppose this is your Earth, isn't it? And somewhere we sent this satellite, clear? And this satellite, suppose you're going to talk about 3 satellites are there, which is going to cover the entire Earth. Yeah, suppose assuming that 120-degree angle is there, so it is going to cover 360 degree. No, 12 3 is 36. Fine. So if you are going to talk about this, so this is your footprint. So this part is basically your footprint. So we will see. This is what is called your footprint. It is going to cover this much area. So this area is called footprint of that particular satellite. Clear. So in this way it is going to cover this 120 degree. In this way it is going to cover another 120 degree. So if these satellites are at a larger distance from this Earth. Suppose this is the radius, this is the radius, this is the center of that Earth. So if the distance is very high, very large, so in that case, obviously the power of sending the signal from this particular satellite to somewhere in that footprint area, like this area. Suppose this is the footprint of this satellite, 120 degree and so on. Clear? So it has to be somewhere here. So it is going to have 120 degree, 120 degree, and in this way. So this footprint area has to be covered in that particular by that particular satellite. So this is the footprint of this. So in order to send the signal from this satellite to the Earth, so it needs very high power. So that may be counted as one of the drawback of your GEO, isn't it? So I think this part is clear. So these are the deficiencies. Somewhere you can say drawback or deficiency of this GEO, LEO, MEO. And LEO, since it is at very lower region of the Earth, so in that case, suppose some satellite, maybe if we take different pen, so it is located at lower orbit. Suppose this is your another one LEO, another LEO satellite, another LEO satellite, so on and so forth in this. So number of satellite for coverage of that particular Earth will be more. The cost will go high, isn't it? The number of satellites will be very large because it is at lower orbit. But the benefit is that, so the power which is going to be transmitted from this particular satellite to that particular footprint is going to be little bit low as compared to your GEO, as compared to your MEO. If you're going to talk about this LEO, so number of satellites is really high. So this is counted as one of the drawback. And plus point is that, so this power, it needs very less power in order to transmit the data towards its own footprint. So this is the plus point of this. And MEO, it is in between both these two, isn't it?
So this is all about that. So fine. So coming back to that, so I made some slide just now. I copied some content in that slide. So let me open that slide first. Fine. So let me. Now coming back to your history. So now this history of the satellite, it is saying after Second World War, that is around 1945, yeah, they started thinking that why don't we send the satellite to the this uh, away from this Earth so that we can have some communication, isn't it? So he started thinking about that. So the author is one of the scientists. So he has published one of the paper. I think you are able to see that he published one paper related to your terrestrial relay. So terrestrial relay is nothing but some sort of a satellite. So and we are able to send the satellite from Earth to that particular orbit. That may be LEO, GEO, MEO. It depends on the uh, position where we are going to fit that particular satellite. Clear? So Sputnik, that was one of the satellite. You can say one of the first satellite that is being launched by your Soviet Union, and it shocked the entire world. So that was the history of this. So some more satellites are there. I'm going to go for the next slide. So then US has started putting its own effort, isn't it? So later, after around 1960, and this US also launched satellite named ECHO, ECHO. So they launched ECHO satellite just to have some competition with Soviet Union. Soviet Union Sputnik, they have launched this Sputnik satellite, isn't it? Around 1957, they launched this particular Sputnik by the Soviet Union. So again, in competition with this USA, launched another satellite by the name ECHO. So ECHO is, they have given the name ECHO. That means whatever we are sending from, suppose one part of the Earth, it is going to reflect to the another part of the Earth. So this ECHO is acting as one of the mirror. So let me make pen. Now suppose, and by using Control P, you can make this pen, because you are supposed to make slide also in your seminar. So at the same time, so you are able to see that pen. Now I can make this use of this pen. Control P, Control P for pen. This is the shortcut key. So I was talking about this satellite. So this ECHO satellite is here. So this is your PPT. In the PPT itself, I am drawing this by using mouse. So this is your satellite, and ECHO, they have given the name as ECHO satellite, and this is your suppose Earth, fine, and we are sending the data from here to here. Suppose right now we are staying somewhere in India. I'm sending the data. I'm sending the mail to one of my friend who is staying in suppose Australia, somewhere here, isn't it? So it is this one. This satellite is acting as one of the. This satellite is acting as one of the mirror. So that's why they have given this as your ECHO. And this is your Earth. This is Earth. Okay, and we are sending the data from Earth, or we are sending some mail or chat or something like this to satellite, and satellite is reflecting the same thing back to the Earth, isn't it? So they have given the name as your ECHO. Fine. Okay. Achha, for erasing this, you are supposed to just press E to erase this. Are you getting? E. So parallelly, you are able to understand also how the things are really working. Okay. Now coming back to this slide. Fine. So by using Control P, you can bring to the pointer. Control P. So it is going to be converted into pointer. Even you can change the color of the pointer. Right click and a pointer. Some of you might be knowing, but most of you might not be knowing. So color of this, and now you can change the color of this pen. E for erasing the content. E. Since it is there in your seminar, so I thought
it is required. Now coming back to your 3 year later, this Syncom, one of the satellite was there, Syncom. So Syncom was launched, and this is your geostationary. And earlier it was not geostationary. Earlier they just made this one. They least bother about the rotation and revolution of Earth, isn't it? Rotation and revolution, both the things are really little bit different, isn't it? So based on this, they synchronized the satellite, and they have given the name as your geostationary satellite. Clear? So this satellite is in tune with your rotation as well as revolution of the Earth. Clear? So they made this sort of your satellite. Syncom, for synchronization, they have given the name as your geosynchronous or geostationary satellite. And now this is the history. I'm not going to read out the history. So I've written this. I'm going to share this slide. So INSAT 1, you might have heard this INSAT 1, INSAT 2, INSAT 3. These are the satellites that are being launched in different years in order to have very good communication. Some are for TV channels, some are for communication channels and all that. Are you able to see? Yes. So INSAT 1, they started in 1965. Clear? So some weight are also given around 68 kg. Clear? And these number of channels were there, that 2 of full duplex. So these are duplex channel. So duplex, you are familiar with duplex, simplex, duplex, isn't it? You know duplex? बच्चों डुप्लेक्स का मीनिंग पता है कि थोड़ा बताना होगा? So sending and receiving at the same time is possible. Same time, correct. तो इस वैसे 3 होते हैं, एक एक सिंप्लेक्स हुआ, डुप्लेक्स हुआ, एक फुल डुप्लेक्स, 3 तरह से होते हैं. गेटिंग? तो सिंप्लेक्स में क्या हुआ कि वन साइडेड है ना, वी आर सेंडिंग द डेटा फ्रॉम सपोज सोर्स डेस्टिनेशन, दैट्स इट. उल्टा नहीं होगा, डेस्टिनेशन से सोर्स में नहीं आएगा. गेटिंग? कुछ ऐसा वो हो सिस्टम जो मैं सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ भेज रहा हूँ. क्लियर? कुछ ऐसा हो रहा है कि it is sending the signal from source to destination, but if destination also wants to send some data, so it is possible to send the data to source, but not at the same time. अलग टाइम पे. ये यहाँ से यहाँ तक सिग्नल आया T1 टाइम पे, तो T2 टाइम पे फिर ये यहाँ से यहाँ तक भेज रहा है. तो both the times are different, है ना? तो सिंप्लेक्स मतलब वन साइडेड, दूसरे साइड पॉसिबल नहीं है ना. डुप्लेक्स में दूसरे साइड भी पॉसिबल है, बट नॉट एट द सेम टाइम. यहाँ से भी मैं भेज रहा हूँ, यहाँ से भी भेज रहा हूँ एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे पॉसिबल नहीं है. फुल डुप्लेक्स में एक ही टाइम पे पॉसिबल है. मैं मान लीजिए 10 बजे यहाँ से भेजा तो 10 बजे डेस्टिनेशन से भी भेज सकता हूँ मैं, है ना. सेम टाइम पे, सेम ड्यूरेशन पे, है ना, मैं भेज सकता हूँ. सो आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दिस. ठीक है. So we are going to come about, we have seen that INSAT 1 and 1965 में, so these are the history that we are supposed to study. INSAT 2 के बारे में बात हो रही, तो टीवी चैनल्स और इसमें ये सारे चीज आने लगे, है ना, INSAT 2 में अराउंड 1967. बट यू आर सपोज टू रिमेंबर द डेटा, ये याद करना आप ही को पड़ेगा, ये डेटा सारा चीज. क्लियर? ठीक है. फिर मैरीसैट करके एक आया, मैरीसैट सैटेलाइट, है ना, अराउंड 1976 में आया. ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे सैटेलाइट्स में, है ना. फिर इनसैट A, B, C ऐसे करके बहुत सारे इसमें आने लगे, है ना. सो दीज आर द डिफरेंट दिस वन, है ना. इनसैट 1, इनसैट 2, इनसैट 3, है ना. सो इनमार्सैट C, A, ऐसे ऐसे कई सारे वर्जन्स आते गए. और वर्जन्स किस लिए आते गए? क्योंकि वी नीड, I mean, the data rate should be very, very high. The clarity of the signal should be very, very high, है ना? And at the same time, the power of that particular antenna is also very important, है ना. कम से कम पावर में we are going to get more and more signal. तो ये सारे चीज इसके अंदर इन्वेंशन होता गया. Clear? So have you heard about this X.25 protocol? X.25 एक प्रोटोकॉल होता है ना, बेसिकली फॉर योर
these are used in your ISDN also, है ना. ISDN आपने जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ पहले, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN. तो उसमें X.255 प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन ऑर्डर टू हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात आती है तो X.25 प्रोटोकॉल का यूज ज़्यादा करते हैं. तो ये सारी चीज़ें है ना. वाई वी आर यूजिंग दिस डिफरेंट सैटेलाइट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द डेटा. और स्पीड ऑफ द डेटा से क्या होगा, क्लियरिटी होगी. ज़्यादा से ज़्यादा बल्क अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड एट द सेम टाइम, यानी पर सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हम ट्रांसमिट कर पाएंगे. अच्छी से अच्छी पिक्सल्स हम देख पाएंगे टीवी चैनल्स में. तो ये सारी चीज़ हैं इसके अंदर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दीज आर द एप्लीकेशन. कुछ एप्लीकेशंस इसके साथ एसोसिएटेड है ना, कि सैटेलाइट्स कहाँ कहाँ काम आ सकता है ना, वेयर वी कैन डिप्लॉय, इसका फ़ायदा क्या होगा. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर वेदर फॉरकास्टिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट था पहले, मतलब पहले ज़माने में वी आर अनअवेयर कि यहाँ तूफान आने वाला है, चाहे कुछ ये होने वाला है. लिविंग दैट सुनामी तो अचानक से एकदम वो हो जाता है, तो अवेयरनेस नहीं रहती है. क्लियर. उसके लिए भी मतलब चल रहा है, और कुछ साइंटिस्ट वो भी है कि सुनामी को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तो चल रहा है सारा प्रोसेस अभी. लेकिन वेदर फॉरकास्टिंग में ये है कि वी आर अवेयर कि हो सकता है आने वाले मतलब 10 दिन में ये होगा, आने वाले है ना, कल या परसों फोरकास्टिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट पिक्चर दैट आर बीइंग टेकन केयर बाय योर सैटेलाइट, है ना. तो इंफ्रारेड से उसमें कई अलग अलग जगह के पिक्चर्स वो ले सकते हैं. जैसे बादल होगा तो बादल का अलग वो इमेज आएगा इंफ्रारेड, जब मैं लाइट भेजूंगा तो गेटिंग. तो ये सारे चीज़ इसके थ्रू जो इमेज कैप्चर किए जा रहे हैं, उस इमेज से वो डिपिक्ट कर पा रहे हैं कि है ना, पॉसिबिलिटीज आर देयर. जैसे बादल होगा तो उसका अलग इमेज आएगा, बादल नहीं होगा उसका अलग ही इमेज आएगा, बादल की मूवमेंट किस डायरेक्शन में है ना. नेक्स्ट उसका लोकेशन क्या हो सकता है 24 घंटे में, गेटिंग, या अनदर 4-5 आवर्स में. तो ये सारा चीज प्रिडिक्शन है. एंड हियर आल्सो आई मीन मशीन लर्निंग इज प्लेइंग वाइटल रोल. मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सारे सिनारियों में भी. क्लियर है ना. बाई बिकॉज इफ यू आर हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सो यू कैन प्रिडिक्ट समथिंग. प्रिडिक्शन पॉसिबल है, बट प्रोवाइडेड दैट यू मस्ट हैव वेरी बल्क अमाउंट ऑफ डेटा. जब आपके पास डेटा है तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं. जैसे आपने किया होगा लीनियर रिग्रेशन वगैरह है, या रैंडम फॉरेस्ट है, तो उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं. और पाई टॉर्च वगैरह ऐसा है जिसमें कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम आपका आर स्कोर जो अच्छा दे रहा है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं. तो ये सारा चीज़ उसमें देख सकते हैं, है ना. एफ स्कोर निकाल सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एक्यूरेसी निकाल सकते हैं. तो ये सारा चीज़ तब होगा जब आपके पास डेटा होगा. बच्चों आवाज, बच्चों क्लियर है ना. Yes, sir. Yes. ठीक है, ठीक. तो ये आपका वेदर फोरकास्टिंग पे बहुत अप्लीकेबल है ना. तो लोगों ने पहला यही टारगेट किया कि व्हाई डोंट वी लॉन्च द सैटेलाइट व्हिच इज गोइंग टू प्रेडिक्ट सम सॉर्ट ऑफ वेदर, है ना, वेदर फोरकास्टिंग हो सके. फाइन. तो ये चीज़ है. अच्छा, जैसे एक वेदर फोरकास्टिंग, एक वेदर होता है, एक क्लाइमेट होता है. सो कैन यू टेल व्हाट इज द डिफरेंस क्लाइमेट और वेदर में. सर बच्चों वेदर सिंगल और 2 दिन के लिए हो सकता है. क्लाइमेट हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए असेस करते हैं. राइट. कौन कौन हु इज सेइंग. बाकी बाकी. वेरी गुड, वेरी गुड. सही बताया आपने कि जैसे वेदर फोरकास्टिंग है तो दिस इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है ना. और क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे बोलते हैं तो उसमें टेन्यूर इज लिटिल बिट हाई. जो टाइम आपका है वो थोड़ा ज़्यादा है ना. मान लीजिए 4 महीने के लिए वो क्लाइमेटिक कंडीशन देख लिया आपने, है ना. तो 4 महीने वाला जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है. वेदर फोरकास्टिंग क्या हुआ, ये आज कुछ है वेदर, कल हो सकता है वेदर चेंज हो जाए, है ना, या 3 दिन के बाद वेदर चेंज हो सकता है. लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो एक पूरा का पूरा टेन्यूर आप लेके चल रहे हैं कि समर सीजन में ऐसा चलेगा, विंटर सीजन में ऐसा चलेगा, पूरा का पूरा आप क्लाइमेट, है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दिस रीजन इज नॉट गुड. तो वो पूरा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप लेके चल रहे हैं. क्लियर. तो ये भी कहीं मैंने देखा था, somebody was asking this question.
somebody has asked this question in your this viva. ऐसे ही चल रहा था वेदर, और ये किसी ने बोला वेदर, तो उसने पूछा फिर वेदर और क्लाइमेट में फिर क्या डिफरेंस है। ठीक है, वेरी नाइस, समझ आ गया कि वेदर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लिटिल बिट एज कंपेयर टू योर क्लाइमेट, है ना। क्लाइमेट कई सारे वेदर्स को आप ऐड कर देंगे तब जाके आपका क्लाइमेट बन जाएगा। क्लियर? तो जो आपने कई सारे वेदर्स का आपने एवरेज ले लिया तो वो क्लाइमेटिक कंडीशन को शो करेगा। तो वेदर इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन और क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, जैसे बोलते क्लाइमेटिक कंडीशन वहां का है ना अच्छा नहीं, तो उसमें आप पूरा ऐसे मान के चल रहे कि पूरे साल में क्या सीन रहता है उसका एवरेज निकाला आपने, है ना। तो वेदर तो है ना, आए दिन मान लीजिए आज ऐसा वेदर है, कल कुछ और वेदर हो सकता है, परसों और वेदर हो सकता है, तो वेदर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। क्लियर? अच्छा, कमिंग बैक टू योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज सैटेलाइट एंड टीवी ब्रॉडकास्ट। तो सैटेलाइट एंड टीवी ब्रॉडकास्ट में क्या हुआ कि रेडियो, वी आर सेंडिंग द रेडियो सिग्नल, है ना, सैटेलाइट से रेडियो सिग्नल हम लोग कर रहे हैं, एंड वी आर एबल टू सी द टीवी चैनल्स। जो टीवी चैनल्स हैं सैटेलाइट्स हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि योर वेदर कंडीशन इज नॉट गुड, तो आपको कुछ ग्रेन्स टाइप का दिखेगा या हेजी पिक्चर दिखेगा, या समटाइम इवन यू आर अनेबल टू सी द मूवी, पिक्चर ही चला जाता है अगर कंडीशन अच्छा नहीं है, वेदर कंडीशन अच्छा नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट रिसीविंग एम्पल अमाउंट ऑफ सिग्नल फ्रॉम आवर सैटेलाइट्स। क्लियर? जो एंटीना लगा हुआ है, जो आपके इसमें आपने देखा होगा वीसैट टाइप का एक एंटीना लगा रहता है, ठीक है, जैसे इस तरह से आपने देखा होगा आपके उसमें ना डिश ऐसे लगी रहती है, एंड समवेयर इस तरह से ऐसा ये बना रहता है, तो दिस इज योर रिसीविंग पार्ट, ये जो ये है रिसीविंग पार्ट है, और ये तो आपको सपोर्ट करने के लिए आपको कहीं पर वो लगा देंगे ना पेग और इसके थ्रू, एंड समवेयर यहाँ सैटेलाइट है मान लीजिए, तो सैटेलाइट्स आर सेंडिंग द सिग्नल, यहाँ से सिग्नल भेजा एंड इट हैज टू पास टू द फोकस, यहाँ इसने भेजा, ये फोकस से पास होगा, जहां भी सिग्नल्स वो अटैच हो रहा फोकस। इससे क्या फायदा होगा कि वी आर एबल टू रिसीव द गुड स्ट्रेंथ ऑफ दैट सिग्नल, है ना। जो भी पास होगा इसी फोकस से पास होना है। ये जो फोकस आपका एक बना रहता है एंटीना, बीच में एक आपने देखा होगा, है ना, जो भी पास होगा, है ना, ये ऐसा इलेक्ट्रिकल बनाया जाता है कि जो भी पास होगा इस फोकल लेंथ से पास होगा, है ना, फोकस से पास होगा, जो आपने मिरर वगैरह में भी पढ़ा होगा, है ना, एक फोकल लेंथ ऐसे करके होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये सारा चीज, है ना। तो जो भी आपने ये किया होगा, यहाँ से अगर जो भी पास होगा, क्लियर, तो वो आपके इससे रिफ्लेक्ट होके आएगा फोकस से। तो इस तरह से इसका बनाया जाता है कि ऑल द सिग्नल्स आर गोइंग टू पास टू द फोकस। क्यों फायदा इससे क्या है कि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होगी, है ना, वहां ज्यादा हमें मिलेगा, पिक्चर क्लियर होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको इरेज करता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। एक ही इंपॉर्टेंस ये हो गया, पहला इंपॉर्टेंस हमने वेदर का देख ही रखा था। नेक्स्ट इज योर मिलिट्री सैटेलाइट्स। मिलिट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि हमारे अपने कंट्री को सेफ साइड के लिए, हमें बचाने के लिए, है ना, एनिमी से वो रखने के लिए एक सर्विलेंस सिस्टम चाहिए, जो आपके मिलिट्री सैटेलाइट्स में ये कैपेबिलिटी होती है ना। इसमें सारी चीज़ हम देख सकते हैं, क्लियर पिक्चर आ सकता है कि अभी क्या मूवमेंट है अभी, है ना, सामने में, बिकॉज डायरेक्टली वी कैन नॉट सी द एनिमी। मान लीजिए हिल है, पहाड़ है, उसके थ्रू हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट के थ्रू मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि अभी क्या वहाँ पर सीन चल रहा है, कैसे मूवमेंट्स हो रहे हैं। क्लियर? तो ये मिलिट्री सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जाते हैं, अपने अपने कंट्रीज वाले जो हैं कैपेबल है, जो दे आर लॉन्चिंग दिस मिलिट्री सैटेलाइट्स। क्लियर? सो सैटेलाइट्स फॉर नेविगेशन। अब ये नेविगेशन के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, सपोज आई वांट टू सी माय चाइल्ड, कि भाई बस स्कूल से निकली तो अब कहाँ पर है, अब कहाँ पर है ना, गेटिंग। सो जीपीएस वहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगा रहता है। क्लियर? जीपीएस से मैं ट्रैक कर पाऊंगा अपने मोबाइल पे भी अभी क्या सिचुएशन है, अभी कहाँ पहुंची, है ना। जैसे गूगल मैप वगैरह में भी आप देखते होंगे, या लाइव लोकेशन शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, वहाँ भी देखते होंगे कैसे मूवमेंट है, मूवमेंट ऐसे है, अब यहाँ पहुंचा है, इस तरह से। सो अगेन दिस इज वेरी यूजफुल फॉर ट्रेसिंग दैट इंटायर थिंग, है ना। कई बार कुछ कोई समथिंग वेंट रॉन्ग या थेफ्ट कुछ हो जाता है, चोरी हो जाती है, तो उसमें भी हम ट्रेस कर सकते हैं। अगर जीपीएस लगा है तो ट्रेस कर पाएंगे कि व्हाट इज द लोकेशन, है ना। कई बार वो
कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, मान लीजिए वहाँ पर है, तो वो लास्ट लोकेशन ट्रेस करते हैं कि दिस वाज द लास्ट लोकेशन, अगर जीपीएस है उस सिस्टम में, उसके बाद से फिर वो चीज़ नहीं मिली, है ना। तो गेटिंग, तो ये सब ये हेल्पफुल रहता है। तो ये आपका जीपीएस का पार्ट हो गया। एक चोरी और ये सब जो है व्हीकल में अगर लगा हुआ है तो वो ट्रेस कर पाएंगे कि वो व्हीकल लास्ट उसका लोकेशन क्या था, किस तरह से सारी चीज़ें मूवमेंट हो रही थी, तो ये चीज़ देख सकते हैं। क्लियर। तो जैसे अभी एक वो ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था, एक मिलिटेंट था, शायद मैंने बताया था आपको, एक होटल में घुस गए थे, तो वो सारे वो सर्वेलेंस सिस्टम इंस्टॉल कर दिए, कैमरा इंस्टॉल कर दिया उसके पास में। तो जैसे ही उसने मिरर से नीचे में वो आपके उसमें विंडो से नीचे देखा, तो कि भाई कितने वो हैं पुलिसमैन है, कितने क्या है, क्या स्थिति है नीचे में। द मोमेंट ही सॉ है ना डाउन, तो वो कैमरा से उसका पिक्चर कैप्चर हुआ, पिक्चर से उसकी वो इमेज प्रोसेसिंग हुई, इमेज प्रोसेसिंग में उसका मैप किया गया कि ये इमेज जो उसके डेटाबेस में ऑलरेडी था, उसको तुरंत फिर उसके आपके न्यूज़ में फ्लैश होने लगा कि ये बंदा यहाँ था, अच्छा पढ़ने वाला था, इस कंट्री का है, इस कंट्री में नहीं था, यहाँ पर कैसे आ गया, और इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, इतने भाई बहन है, यहाँ का रहने वाला है, पूरा का पूरा हिस्ट्री वो सारा चीज़ आ गया। So it is very very important for any country to have that surveillance system. तो उससे चोरी और ये सब थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे अभी देखिए कैमरा वैमरा इंस्टॉल होने के बाद थोड़ा सा कम वो हुआ है, नहीं तो पहले कितनी चोरियां होती थी, कोई पता ही नहीं चल रहा है। इवन जो चोर है वो पहले दे आर गोइंग टू अटैक दैट दिस कैमरा इटसेल्फ, वो पहले वही देखते हैं, मुंह में पहले बांध लेंगे, देखेंगे कैमरा कहाँ है, उसको अटैक करेंगे, उसके बाद बहुत चीज़ वो है। मान लीजिए वहाँ का डिस्ट्रॉय कर दिया, आगे 4 कैमरा और लगा हुआ है दूसरे के घरों में, तो वो टाइम और ड्यूरेशन सब देख के ट्रेस किया जाता है, तो थोड़ा सा कम हुआ है ये सारा चीज़, isn't it? Now, next satellite we are going to go for this global telephone backbones. तो टेलीफोन बैकबोन्स तो यही है कि जो टेलीफोन कम्युनिकेशंस हो रहा है, तो इसके लिए भी ये आपका सैटेलाइट का बहुत बहुत योगदान है। जो आज की डेट में हम लोग मोबाइल और ये सारा चीज़ बात कर रहे हैं, है ना, 3G 4G 5G, है ना, 5G भी लॉन्च कर दिया गया है, तो ये सारी चीज़ हैं, है ना। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टेलीफोन, है ना, टेलीफोन बैकबोन, मतलब पहले लैंडलाइन चलता था, अब वो लैंडलाइन हटा के, है ना, अब वायरलेस सारा चीज़ हो गया है। क्लियर। एंड लॉट मेनी कंट्रीज आर सेंडिंग द डेटा टू द सैटेलाइट, तो उनको ये भी पता है कि यहाँ कुछ कैटेस्ट्रॉफी हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो पूरा का पूरा संसार डूब जाएगा, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो मैं डेटा कैसे फेच करूंगा, जो यहाँ हार्ड डिस्क है, ये है, वो है, सारा खत्म हो जाएगा। तो वो क्या करने लगे कि वो सैटेलाइट्स में सारा चीज़ डेटा को, है ना, एक्सपोर्ट करने लगे, ताकि कभी भी ऐसा कुछ होता है तो वहां से वो इंपोर्ट कर सकें। गेटिंग। तो ये प्रोसेस चल रहा है, ये सारा चीज़ कि क्या किस तरह से मैं अपने आपको सेफ साइड, कैसे डेटा को सेफ रखा जाए, ये सारा चीज़ इसके अंदर चल रहा है। तो इवन बिग डेटा और ये सब आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, हडूप और ये सब में, तो ये सारे प्रोसेस हैं कि कम से कम, है ना, पेटाबाइट एक्साबाइट इस स्पीड से डेटा को हमें अचीव करना है, और कैसे हडूप उसको प्रोसेस कर पा रहा है, ये सारा चीज़ आगे कैसे बढ़ पा रहा है, बिकॉज बल्क अमाउंट ऑफ डेटा सर जनरेटिंग फ्रॉम सोशल मीडिया, और वो भी आपका वो नहीं है कि रो और कॉलम फॉर्मेट में है ना, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा तो ठीक है, आपका DB2 हो गया, आप एक्सेस से कर लिए या ओरेकल से कर लिए, इजंट इट। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड जो डेटा है उसको कैसे हैंडल करें, लाइक द डेटा आर कमिंग फ्रॉम, आप पिक्चर किए, इमोजीज किए, कोई इमेज डाल दिया, कोई वीडियो डाल दिया, है ना, तो वो रो कॉलम में सेट नहीं हो रहा है कि इसमें हमने एम्प्लॉय ID डाल दिया, ये रो कॉलम में सब चल रहा है, और मैं SQL क्वेरी लगाया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो वो सारा डेटा फेच होके आ गया। गेटिंग। सो दिस, है ना, दिस थिंग्स आर नॉट रियली वर्किंग। अब स्ट्रक्चर एकदम खत्म हो गया, अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम हो रहा है ना, मोंगो DB और ये सब जो आ रहा है, NoSQL जो है, उस पर काम चल रहा है। गेटिंग। तो ये सब सारा चीज़ है, ग्लोबल टेलीफोन बैकबोन्स, है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, कि है ना हम लोग क्यों लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज वी आर लॉन्चिंग फॉर टेलीफोन सिस्टम, अच्छी से अच्छी स्पीड आए, है ना, एक्यूरेसी आए, वीडियो भेज सकें, है ना, ऑडियो भेज सकें, बल्क अमाउंट ऑफ डेटा भेज सकें, ये सारा चीज़ जो बिग डेटा के बारे में बात हो रही थी, वो सब कर सकें इसके अंदर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सैटेलाइट्स जो वो है, दैट इज
कनेक्शन फॉर रिमोट एंड डेवलपिंग एरिया, जो अभी जो डेवलप कर रहा है ना, डेवलपिंग एरिया जो चल रहा है, डेवलप्ड एरिया तो ठीक है उसके अंदर है, लेकिन जहाँ एरिया ऐसे लोकेशन में जहाँ मैं नहीं पहुँच सकता हूँ, इसीलिए जहाँ मैं बार बार वो टावर को वो नहीं कर सकता हूँ, है ना। और या टावर का इंस्टॉलेशन भी, दिस इज वन ऑफ द हरिकुलिंग टास्क, टफ टास्क हो जाता है। जैसे हिल एरिया हुआ, पोलर रीजन्स हो गए, है ना, विंडी एरिया है, लद्दाख वगैरह जैसे एरिया है, जैसे मान लीजिए, तो उस तरह से है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव सम कम्युनिकेशन। तो वहाँ किसका हेल्प लेंगे? सैटेलाइट्स का हेल्प लेंगे। क्लियर? जहाँ जोग्राफिकल लोकेशन है ना बहुत खराब वो है ना, हिल एरिया है, आपका वो है, स्नो है ना, पोलर रीजन्स वगैरह है, समुद्र है ना, वी कैन नॉट इंस्टॉल दैट टावर समुद्र वगैरह में, तो वहाँ उस केस में वी आर यूजिंग दिस सैटेलाइट। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रेस करके आगे बढ़ते हैं। सो 2 more satellites are there। एक ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन जो हम लोग अभी है ना GSM ये सब पढ़ भी चुके हैं, आर्किटेक्चर भी आपका पूछा गया था आपके इसमें एग्जाम में, है ना, GSM के बारे में, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो इसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। और सैटेलाइट्स फॉर नेविगेशन हमने अभी देखा भी, नेविगेशन के लिए भी कई सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किए गए हैं। एक टिपिकल सैटेलाइट का एक छोटा सा डायग्राम है, आई थिंक टाइम इज देयर। चलिए ये डायग्राम देख के फिर स्टॉप करते हैं। तो इसमें देखिए एक टिपिकल सैटेलाइट्स का दिया हुआ है ना, जिससे आपको कभी सैटेलाइट के बारे में कुछ भी अगर कुछ आता है तो यू आर सपोज टू मेक दिस डायग्राम। तो ऐसे इस तरह का कुछ डायग्राम बनाना है आपको। क्लियर? सो दिस इज योर सैटेलाइट। जनरली सैटेलाइट इस तरह से करते हैं। और दीज आर द विंग्स। ये पावर कहाँ से लेता है? इस सोलर पैनल से, यहाँ से। दीज आर द सोलर, है ना, कुछ हद तक सोलर पैनल ये आपके इससे आपका पावर लेता है, क्योंकि वहां पर चार्ज करने का कोई सिस्टम नहीं है, दैट वी ऑलरेडी नो, है ना, कि प्लग लगा दिया और चार्ज हो गया बैटरी उसका। तो वहाँ कैसे ले रहा है ये सारा चीज़, है ना, इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ना, कि वो ज़्यादा ज़्यादा इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो। जैसे आपने सोलर पैनल देखा होगा, तो एक एंगल जिसमें कि जो एवरेज हीट है उस पूरे दिन का सबसे ज़्यादा होता है, उस एंगल पे लगाते हैं वो पैनल को। क्लियर? तो ये सैटेलाइट इस तरह से है कि जो सन का रेज होगा उस डायरेक्शन में इट इज गोइंग टू रोटेट। तो बहुत बहुत आगे चल एडवांस लेवल पे ये सारा चीज़ किया गया है। सो दीज आर द सैटेलाइट, है ना, मोबाइल यूजर लिंक, है ना, शॉर्ट में MUL करके, ये देखें, देखिए कई जगह MUL लिखा होगा, MUL एक यहाँ पर है ना। सेकंड इज योर गेटवे लिंक, जो जिस गेटवे से पास होकर फिर अदर स्टेशन में वो जाएगा, तो वो गेटवे लिंक है आपका। क्लियर? तो दीज आर द गेटवे लिंक, यहाँ से यहाँ तक गेटवे लिंक है, यहाँ से यहाँ तक गेटवे लिंक है। उसके बाद फिर फर्दर आगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिग्नल्स का। और दिस इज जो ये ISL जो है इंटर सैटेलाइट लिंक, है ना, कई बार ये पूछ भी देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में 2 मार्क्स वगैरह में कि इंटर सैटेलाइट लिंक के बारे में बताइए। तो इंटर सैटेलाइट लिंक में क्या होगा कि अगर सपोज दिस स्टेशन इज नॉट गेटिंग द डेटा, है ना, और ये इस रेंज में आ रहा है, क्लियर, इस रेंज में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू सेंड द डेटा टू दिस सैटेलाइट, एंड फ्रॉम दिस सैटेलाइट इट इज गोइंग टू सेंड द डेटा टू अनदर सैटेलाइट। क्लियर? तो ये बहुत सारे इसमें चल रहे हैं कि आपस में ही सैटेलाइट कैसे कम्युनिकेट कर पाए। क्लियर? तो ये भी एक प्रोसेस है, तो दैट इज कॉल्ड इंटर सैटेलाइट लिंक। सर ISL में लाइन ऑफ साइट चाहिए होता है हमें, या फिर बिना लाइन ऑफ साइट के भी ये कम्युनिकेट कर लेता है? लाइन ऑफ साइट चाहिए इसमें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लाइन ऑफ साइट है तो उसकी जो वो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होगी, और कई केसेस में मान लीजिए उसको नहीं मिला, है ना, तो अगर कुछ और तरीका है, मान लीजिए कहीं से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, जैसे हमने देखा था, एक सपोज यहाँ पहाड़ है मान लीजिए, और इसको लाइन ऑफ साइट में नहीं आ रहा है, एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ है। क्लियर? तो हो सकता है कि ये यहाँ से सिग्नल टकरा के फिर यहाँ से आ रहा हो, है ना, हो सकता है कोई और भी जरिया हो जो यहाँ से मूवमेंट होके फिर यहाँ से ये सेंड कर रहा हो सिग्नल को। क्लियर? तो वो लाइन ऑफ साइट में नहीं हो रहा है, तो उस केस में, है ना, इसको बोलते हैं मल्टी पाथ फेडिंग। तो वो कई सारे पाथ उसको यहाँ से जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो इसका फेज है, जो फेज डिफरेंस इसको है, तो आपस में ये सिग्नल आपस में ये कैंसिल हो जा रहा है, तो उसको फेडिंग बोलेंगे। मल्टीपाथ फेडिंग, मतलब यहाँ से आया, बहुत सारे जगह से आ रहा है, लाइन ऑफ साइट में उसको नहीं मिल पा रहा है, बट इट इज गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ योर सिग्नल, कुछ सिग्नल इसके पास आ रहा है।
क्लियर? तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो होता है कि भाई टॉप में है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सपोज ये अर्थ है तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो एलो लाइन ऑफ साइट में है ना, तो LOS में है तो दैट इज फार बेटर। लेकिन कहीं से भी उसको अगर डेटा मिल पा रहा है, मान लीजिए एक और सैटेलाइट, समवेयर सैटेलाइट इज हियर, यहाँ भी सैटेलाइट एक है, तो लाइन ऑफ साइट में नहीं आ रहा है, इसके थ्रू यूज होके आ रहा है, तब भी वो उससे कैप्चर कर लेगा। मान लीजिए एक सैटेलाइट और है, इसको कम्युनिकेट करना है, सो इट इज गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ अनदर सैटेलाइट। जो राउटिंग का केस मैं बता रहा था कि सैटेलाइट में कैसे राउटिंग हो रही है, तो वो सारा इसके अंदर कवर हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं ISL, इंटर सैटेलाइट लिंक जो है, ये आपस में कैसे ये लिंक कर पा रहे हैं। क्लियर? कभी कुछ ऐसा हो गया कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो आपस में इसको कम्युनिकेट करना है, सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे इसमें बनाए जाते हैं। जैसे अभी हम लोगों का वो फेल हो गया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, तो उसमें भी ये सारे चीज वो ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक पहुंचा, है ना, सारे। फिर अचानक से कम्युनिकेशन गैप हो गया, फिर कुछ सिग्नल नहीं आया, फिर कहीं अचानक सिग्नल आ गया क्योंकि उस रेंज, उस दूसरे सैटेलाइट के रेंज में आ गया। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। और GSM वी आर अवेयर, है ना, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, PSTN, जो हम लोग के टेलीफोन लाइन एक्सचेंज वगैरह में लगा रहता है। क्लियर? सो दिस इज द योर यूजर डेटा, ये यूजर डेटा है। ये ISDN है, जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे जब मैंने टेलीफोन लाइन सपोज उसको पिक किया तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी चली जाती थी। क्लियर? तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि ISP को फिर बार बार डायल कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग के ज़माने में हाफ एन आवर लग जाता था डायल करने में, 1994 का बता रहा हूँ मैं, आधे आधे घंटे हम लोग बैठे हुए हैं, है ना, तो आधे घंटे के बाद फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश होता था। तो गलती से भी रिसीवर आपने उठा लिया, फोन आया, बिकॉज फोन से ही ट्रांसमिट हो रहा है ना, तो उसमें एक बियरर चैनल हुआ, है ना, और एक डेटा चैनल, दो पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया। तो जब आपने फोन सपोज 128 kbps के स्पीड से आ रही है, तो 128 kbps 64 kbps आप बात करने में लगाती है, और 64 kbps आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज करने में आ गया। तो उस केस में आपकी जो कनेक्शन है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई। नहीं तो फिर बार बार ISP में एक नंबर वो देते हैं, तो ISP में मिलाना पड़ता है, सो इट मे टेक अनदर हाफ एन आवर, कई बार आधे आधे घंटे आदमी डायल करने में लग जाता था, क्योंकि उसको फिर सिग्नल नहीं मिल पाता था, लिमिटेड बैंडविड्थ होते थे उस जमाने में। तो ये सारी चीजें हैं। तो जब भी कुछ ऐसे सैटेलाइट सिस्टम आता है, तो यू आर सपोज टू मेक दिस डायग्राम, ये डायग्राम तुरंत आप बनाए। तो आज इतने ही रखते हैं। सो टुमारो वी आर गोइंग टू मीट अगेन। टुमारो इज ऑल्सो ऑनलाइन ना, कल भी ऑनलाइन ही होगा Yes, sir. मेरे ख्याल से, Yes, सैटरडे से। राइट राइट, सैटरडे फिर ऑफलाइन है हम लोगों का, isn't it? ठीक है, सो लेट मी क्विट। कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है, सो लेट्स स्टॉप। ओके, बाय। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. thank you, sir. ओके।